Good morning, guys. I wish you all are happy at your home. So, the happiness of you. Let's start our next class. Okay? And I wish you all are watching my whole video with concept and by heart. Okay? Let's start. Full concept of tense we already have taught. Okay? Let's start our whole concept with one class. Okay? Present. Present tense and past and future tense. Okay, future tense. Okay, let indefinite and then continuous and perfect and continuous, perfect and continuous. Okay, whole concept been with one class in front of you all. So please watch carefully and think carefully. Don't you think we have to do it with one class? Okay, let's move. Present, indefinite present, continuous present, perfect, then continuous. What I say? Will you repeat that, please? Will you repeat that, please? Memorize first, if you can, if possible, or we can say present, indefinite present, continuous present, perfect, then continuous. Past, indefinite past, continuous past, perfect past, perfect, then continuous. Future, indefinite future, continuous future, perfect and continuous. Okay, you have to watch the way of my talking and the way of my waving my hand and face expression matter a lot while a person is speaking English. So you have to watch all concept that you have see around you. The people who is speaking in English in front of you, or we can say in front of public. Okay, we have to learn only how to speak English. People say if you have power, so by speaking in front of me English, बोलते हैं ना, यदि तेरे में दम हो तो इंग्लिश मेरे सामने बोल के दिखाओ. ठीक है, चलिए, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी आदत डाल लीजिए. देखिए, ये एक प्रोसेस है. भाषा को सीखना एक कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, एक प्रोसेस होती है. या जैसे बोलते हैं ना कि कोई गैंगस्टर है तो वो किसी एक मिशन पर काम कर रहा है, तो इसी तरह से आपको भी एक मिशन बनाना पड़ेगा इंग्लिश को सीखने के लिए. क्या करना पड़ेगा? लाइक अ मिशन, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ फॉर मिशन टू कंप्लीट इट. ठीक है, तो आपको एक मिशन की तरह काम करना होगा इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए. एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू टीच इंग्लिश. ओके, चलिए. एंड डोंट फॉरगेट, you have to do all things by alone yourself, because no one help you by speaking English in front of you, because every person want the English speaking is useless for everyone, because they are not able to speak English. Understand? I think you all got my point.
ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हिंदी में। अब बात करते हैं हम अपनी समझने की। ठीक है, चलिए, एक भी पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, देखिए, इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, चाहे वो कोई सा भी इंडिफरेंट हो, इसका मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सॉरी, किसके लिए इसका यूज होता है? फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, what I say, for information. Okay, and continuous means ongoing process, ongoing process. Okay, then perfect means complete. Okay, perfect and continuous means, perfect means complete and continuous means ongoing process. ओके, वी ऑल नो अबाउट इट, हम सब लोग इतना जानते हैं। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या होता है देखिए। पहले वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इसमें होता है क्या, एस और ई एस। ठीक है, या फिर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू फॉर प्लूरल, डज फॉर सिंगुलर। इतना तो आप सब लोग जानते हैं, इतना तो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में वर्ब कैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म, देन सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे ये उल्टा हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, डू फॉर प्लूरल एंड डज फॉर सिंगुलर। और वर्ब कैसी होती है, एस ई एस, या क्या आएगी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, या तो एस ई एस वाली वर्ब आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब एच एम देन आर। ठीक है, वर्ब कैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है, चलिए, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव, ये क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और मेन वर्ब कैसी होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होती है इसमें। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन बीन। ठीक है, और क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी। ठीक है, ये भी क्या होता है, बी की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए, इतनी कहानी हो चुकी। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, देखिए, डिड होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फॉर सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल। ठीक है, वर्ब कैसी आती है, वर्ब कैसी आती है, सेकंड फॉर्म फॉर इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में वर्ब कैसी आती है, सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव बना देते हैं उसको, और इंटरोगेटिव तो उसमें कैसी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे यहाँ पे था, इंटरोगेटिव में या तो एस ई एस वाला आता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए, कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, वॉच एंड वर्ब। ठीक है, देन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी। ओके, चलिए, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट में क्या होता है, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है,
ये भी होता है फॉर सिंगुलर और फॉर प्लूरल, दोनों के साथ यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हैड बीन, देन पास्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। ओके, चलिए फ्यूचर में क्या होता है देखते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, विल और सेल। ठीक है, वर्ब का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, विल एंड सेल देन बी एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये रहा हमारा कंटिन्यूअस, ये रहा हमारा कौन सा, कंटिन्यूअस। चलिए इसमें क्या होता है, विल एंड सेल देन हैव। ठीक है, और इसके वर्ब कैसी होती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, विल हैव और शैल हैव, देन क्या होता है, बीन, क्या होता है, बीन। ठीक है, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। ठीक है, चलिए यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे टेंस कितने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेंस होते हैं। अब दिस इज ओनली द टाइप्स ऑफ टेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक टेंस के कितने तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, कम से कम मैंने सिखाया आपको 6 तरह के। कितने, 6 तरह के सिखाए हुए हैं। तो अब जो 12 में आप 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो जाएंगे, 72। तो देयर आर 72 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन अ टेंस, 72 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, now we have to think about that particular thing. There are 72 types of sentence। 72 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और एग्जामिनर हमें कोई सा भी पूछ सकता है, कोई सा भी, बातें अगर कम हिज माइंड, जो उसके दिमाग में आएगा वो पूछ लेगा। इसको आप इसमें बदलिए, इसको आप इसमें बदलिए, इसको आप इसमें बदलिए। ठीक है, अभी तो इसमें बदलने के लिए कुछ और भी बहुत कुछ आता है। देखिए 1-2 पैसे वर्ड्स भी आते हैं, नरेशन भी आता है, उसमें आर्टिकल भी आता है। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और वो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए हम इनकी पहचान कैसे ढूंढेंगे, बस पहचान कैसे ढूंढेंगे। देखिए अब पहचान ढूंढने के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को, कि आप लोगों को मैं समझाऊं कैसे। आपको पहचान करना ऐसे सीखना है कि आपने टेंस देखा नहीं, कि आपने उसको बताना है सीधा कि ये टेंस है कौन सा। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में यदि आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज दिखाई दे जाए एज अ हेल्पिंग वर्ब यदि आपको डू और डज दिखाई दे जाए, या फिर आपको एस या ई एस दिखाई दे जाए, तो आपको समझ जाना है क्या है वो टेंस, कौन सा है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे देखिए आप ध्यान से देखिए, जैसे देखना, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। तो देखिए ये क्या है, एस और ई एस, क्या पर यहाँ पर ऐसा लिखा होता, दे गो टू स्कूल। अब तो एस ई एस है नहीं, तो आपको देखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर ना तो कहीं कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पर कहीं परफेक्ट दिखाई दे रहा है,
तो कौन सा है ये, प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसकी कहानी खत्म। ओके, अब देखिए आप पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में भी आपको कुछ नहीं करना। देखिए आप पास्ट इंडेफिनिट में आपको या तो देखना है डिड, डिड। देखिए डिड का यूज दोनों तरह से किया जाता है, एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखिए, देखिए यू डिड योर वर्क, यू डिड योर वर्क, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यू डिड आपने किया था, योर वर्क अपना काम, एज ए मेन वर्ब है। अब यहाँ पे लिखूँ मैं, यू डिड नॉट डू योर वर्क। घबरा नहीं, हम बहुत अच्छे से करेंगे, सारे कंसेप्ट ए टू जेड करेंगे, बंदा सब भाइयों को समझ में आएगा। देखिए जो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। तो कौन सी वर्ब आ गई है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए डिड। ठीक है, अब जो डिड थी ये अभी सेकंड फॉर्म में थी ना, अभी यहाँ पे कौन सी में आ गई है, फर्स्ट फॉर्म में आ गई है। बाकी योर वर्क, तो देखिए यहाँ पे जो डिड है ना, उसने एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया है, और यहाँ पे उसी डिड ने मेन वर्ब की तरह काम किया है। तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस देना है कि कब डिड हेल्पिंग वर्ब है और कब डिड एज अ मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए फ्यूचर टेंस में तो कुछ करनी नहीं है, क्योंकि उसमें तो बिल सेल आपके लिए आएगा। ठीक है, जैसे आई शैल टीच यू आ लेसन, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अ लेसन, यानी मैं तुम्हें सिखाऊंगा या मैं तुम्हें बता दूंगा। ये टीच अ लेसन का मीनिंग होता है कि मैं तुझे दिखा दूंगा मेरी पावर क्या है। ठीक है, बोलते हैं डोंट टीच मी, मुझे मत सिखाओ, वही है। तो ये क्या है, इसमें पहचानने को कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें सेल है या बिल है। बिल्कुल सिंपल है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यदि बिल है या सेल है, तो स्वाभाविक सी बात है कौन सा है, फ्यूचर है। ठीक है, कौन सा है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर होगी और वर्ब में कौन सी होगी, V1 और ING होगी। देखिए आपको ये तो क्या है, ये क्या दिखाता है आपका, कॉन्टिन्यूस। क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूस। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ING फॉर्म क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूस। इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, जहाँ पर आपको ING दिखाई देगा तो समझ जाओ वो कॉन्टिन्यूस तो है ही। अब वो कौन सा है, वो डिपेंड करता है आपका हेल्पिंग वर्ब पर। यदि इज एम आर है तो प्रेजेंट है, यदि वॉज वर है तो कैसा है, वो कैसा है, पास्ट है, और यदि विल सेल है तो वो कैसा है, फ्यूचर है। ठीक है, ओके। देखिए आई एम रीडिंग आ स्टोरी। ठीक है, शी वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच। ठीक है, दे विल बी गोइंग देयर। देखिए इसमें कहीं भी कोई डिफरेंस है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब एम है, इसमें वाज है, इसमें बिल है। तो ये एम किसकी है, प्रेजेंट की है, वॉज किसकी है, पास्ट की है, और बिल किसकी है, फ्यूचर की है। और देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ING सभी में आ रहा है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको डिफरेंस कहाँ दिखाई देता है, हेल्पिंग वर्ब में। इसमें HMR है, उसमें वॉज वर है, और उसमें बिल भी सेल भी है। बस दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट थ्री कंसेप्ट। ओके, इन तीनों कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही एक मेन डिफरेंस है जो कि आपको एक दूसरे से अलग कर देता है। ओके, चलिए अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
सॉरी परफेक्ट। परफेक्ट भी तीनों एक ही प्रकार के होते हैं। परफेक्ट भी कैसे होते हैं? तीनों सेम होते हैं। परफेक्ट कहाँ गया जी? परफेक्ट मीन्स क्या बताया था मैंने? कंप्लीट। क्या बताया आप सबको? कंप्लीट। यानी कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका है वो क्या कहलाता है आपका? परफेक्ट। सिंपल सी बात है। चलिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव। इसमें इसी का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? हैड। और इसी में इसका क्या हो गया? विल हैव और शैल हैव। ठीक है। चलिए, जैसे दे हैज ईटन फूड, राहुल हैड सोल्ड a car, मोनू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। मोहन विल हैव मोनू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। जी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है। और ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, इसमें हैज है, इसमें हैड है, इसमें विल हैव है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। ठीक है। बाकी देखिए, थर्ड फॉर्म इसमें है, थर्ड फॉर्म इसमें है और थर्ड फॉर्म इसमें है। ठीक है। तो मेन वर्ब की तो परफेक्ट में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। इतनी बात समझ में आपको आई थिंक आ चुकी है। ठीक है। तो क्या है? जुकाम सा हो रहा है। देखिए, अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। किसकी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए, परफेक्ट मीन्स क्या होता है? कंप्लीट। ये किसको दिखाता है? कंप्लीट को। ठीक है। ये बीन किसको दिखा रहा है? कंप्लीट को। कंप्लीट को। और ये आईएनजी है, ये किसको दिखा रहा है? कॉन्टिन्यूस को। ठीक है। किसको दिखा रहा है? आईएनजी कॉन्टिन्यूस को। चलिए, यानी इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, परफेक्ट भी होता है और वो कॉन्टिन्यूस भी होता है। देखिए, जब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तो उसमें हमने क्यों ना 5% ही कोई काम किया हुआ, क्यों ना, जैसे मैं कह दूँ कि वो यार अब उसमें टाइम तो दिखाना पड़ेगा। जब टाइम दिखा रहे हैं तो उतने टाइम तो उसने काम कर लिया होगा। जैसे मैं बोल दूँ कि मैं 2011 से अपने घर रह रहा हूँ। ठीक है। या मैं सब बोल दूँ कि मैं 1 सेकंड से घर रह रहा हूँ, तो जितना वो टाइम ड्यूरेशन दिखाया है उतना तो हमने काम कंप्लीट किया है ना। जैसे मैं बोल दूँ यार ये बंदा तो 2012 से इस कंपनी में काम कर रहा है, तो वह 2012 जो बोला है तो तब से अब तक तो वो तो काम कंप्लीट हो गया। अब जो बात जो कंटिन्यू चल रहा है वो एक अलग बात है। तो हम जो टाइम ड्यूरेशन दिखाते हैं ना, जो हम सेंस 4 के बाद जो टाइम ड्यूरेशन दिखाते हैं वो परफेक्ट के लिए ही दिखाते हैं। इस बात को थोड़ा गहराई से सोचना। जैसे मंजू हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग सिंस 1947। ठीक है। तो ये जो 1947 दिखाया है ना मैंने, जो 1947 का मतलब क्या है? यार तब से अब तक तो जो काम कर ही रही है, यानी ये तो उसने काम कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। और कर रही है मतलब अभी भी कर रही है, तो उतना तो उसने कंप्लीट कर लिया है। 1947 से अब तक तो उसने काम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो तो दिन निकल गए। जैसे मैं बोल दूं राजा had been eating food for 10 minutes। ठीक है। तो जो
10 मिनट्स मैंने बोले, जो 10 मिनट्स मतलब खाना खा रहा है, तो यानी इतना तो उसने कंप्लीट कर लिया है ना खाना। 10 मिनट से तो उसने अपना काम कंप्लीट पूरा कर लिया है, 10 मिनट से तो वो खा ही रहा है, इसलिए काम को उसने क्या कर लिया, कंप्लीट। ठीक है, तो जो हम टाइम ड्यूरेशन, जैसे सपोज मैं आपको बोल दूँ कि मैं आपको यार 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो काम कैसा था मैंने आपको पढ़ाया तो ऑन गोइंग कंटिन्यूस में, लेकिन वो बदल किस में गया, परफेक्ट में बदल गया। जैसे अभी मैं आपको 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, अभी देखिए आपको 25 मिनट हो चुके हैं। अब 25 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 25 मिनट तो मैंने काम कर दिया, यानी 25 मिनट काम तो मैंने परफेक्ट कर दिया। और अब जो कर रहा हूँ, जो अभी भी कर रहा हूँ ना ऑन गोइंग में, वो क्या कहलाता है मेरा, वो क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूस। इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट देन कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब आपको पहचानना कैसे है, यदि आपको हैज और हैव दिखाई दे तो वो कौन सा है, प्रेजेंट है। और देखिए हैज हैव का ही पास्ट क्या होता है, हैड होता है। ठीक है, और बिल सेल किसको दिखाते हैं, फ्यूचर को, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने दिखाया था कि बिल सेल के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिए, ओके, आर यू रेडी टू गॉट इट, यस और नो, प्लीज टेल मी, हरी अप। और सभी भाइयों को निवेदन है, देखिए वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि यार इसको भी बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि उठाई पेन और लिख दिए, आप भी वीडियो बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बताओ कुछ सोचे समझे ये टीचर कैसे पढ़ाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर की बात कर रहा हूँ हैं। और एक ऐसे टीचर को सपोर्ट किया करो, क्योंकि तभी तो उसको मोटिवेशन मिलेगा, और जैसे जैसे टीचर को मोटिवेशन मिलेगा वो आपके लिए काम करता रहेगा, चाहे वो टीचर किसी भी सब्जेक्ट का हो, कहीं से भी हो और कैसे भी हो। ठीक है, एक टीचर तो टीचर होता है, बस उसमें टीचर की क्वालिटी होना चाहिए, समझ रहे हो। और आप फालतू के चैनलों पर टाइम बर्बाद करते रहते हो, इससे बेटर क्या है, इससे बेटर क्या है। देखिए मोबाइल में कभी टाइम बर्बाद करने से आपको कभी कोई खुशी नहीं मिल सकती। हाँ, यदि आप मोबाइल में कुछ सीख कर टाइम बर्बाद कर रहे हो तो वो एक अलग बात होती है। ठीक है, इसलिए कई टीचर ऐसे होते हैं जो बेचारे काम करना शुरू करते हैं और बंद कर देते हैं शुरू करने से पहले, क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि हर आदमी को सपोर्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि भाई वो टीचर एक मेहनत से काम कर रहा है, एक लगन से काम कर रहा है। ठीक है, तो आप भी ऐसे टीचरों को सपोर्ट किया करो, मैं पर्सनली अपनी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी सारे के सारे टेंसों का ये क्या था, निचोड़। आपको कुछ नहीं करना समझने के लिए। यदि आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये वाला पोर्शन दिखाई दे तो समझ जाना कि पास्ट का इंडेफिनिट है, ये वाला पोर्शन दिखाई दे समझ जाना कि फ्यूचर का इंडेफिनिट है, ये दिखाई दे तो समझ जाना क्या है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, ये दिखाई दे जाए तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, ये वाला दिखाई दे जाए तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है। यदि आपको हैज थर्ड फॉर्म दिखाई दिया या हैव थर्ड फॉर्म दिखाई दिया समझ जाना प्रेजेंट का परफेक्ट है, और हैड थर्ड फॉर्म दिखाई दिया ना तो क्या है, वो पास्ट का परफेक्ट है, और विल हैव या शैल हैव की बात थर्ड फॉर्म दिखाई दिया तो फ्यूचर का परफेक्ट है। और यहाँ ये हैज हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होती है भाई, यहाँ पे होती है, सिर्फ इसमें क्या लगा जाता है, परफेक्ट बनाने के लिए उसमें बीन लगा दिया जाता है। मैंने आपको जिस दिन पढ़ाया था उस दिन बताया था कि बीन का यूज होता है परफेक्ट को बनाने के लिए ही, ये रखा बीन किसको, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। और कॉन्टिन्यूस चाहे वो कोई सा भी हो, कंटिन्यूस चाहे वो कोई सा भी हो, आपको उसमें यूज क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म देन ing। ठीक है, टू मेकिंग कॉन्टिन्यूस, दिस इज कॉल्ड जीरेन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, चलिए, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट डे soon, and till then watch this video and share this video if possible, यदि संभव हो तो, यदि कर सको तो करो मेरे लिए। ठीक है, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। थैंक यू।